اور اصلاح معاشرہ. ذرا توجہ دیکھیے گا. جس نے بھی یہ عنوان رکھا اور جس نے بھی طے کیا واقعتاً بہت ہی سمجھداری کا اور عقل مندی کا ثبوت دیا ہے. یہ دونوں چیز لازم ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. معاشرہ بگڑا ہو اس کی اصلاح کا طریقہ تعلیم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو تعلیم بیداری یہ اصلاح معاشرہ کا ذریعہ ہے. اصلاح معاشرہ کا مطلب ہے بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح، یعنی بیمار کا علاج. چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز. آپ حضرات خوش نصیب ہیں، آپ نے میری بات مانی. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العلي العظيم. ایک مرتبہ نہایت عظمت اور محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کا آدھے حصے سے زیادہ الحمدللہ گزر گیا ہے. اس کے باوجود ٹھنڈی کی اس کڑاکی رات میں آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں. اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا. مقصد ہے نا؟ بغیر مقصد کے تو نہیں بیٹھے نا. گھر سے ایک بندہ نکلے، کہاں جا رہے ہو معلوم نہیں، کب آؤ گے معلوم نہیں، کیا لانے جا رہے ہو معلوم نہیں، تو آپ کا فیصلہ ہوتا ہے پاگل ہے. کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو مقصد معلوم نہیں. آپ نیند قربان کر کے اور سردی کو برداشت کر کے آپ بھی، اور مجھے معلوم ہوا کہ کثیر تعداد میں مستورات بھی اس دیر پہر رات تک آپ جگے ہیں. کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا. اگر نہیں ہے تو نیت کر لیں. مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کو وہ عبادت نہیں بنا سکتا ہے. نہ سمجھے؟ ہم اور آپ صرف نماز کو، روزہ کو، تلاوت کو، ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہماری نیت صحیح ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو اور بندوں کے حق کو ادا کرنے کی نیت ہو، تو صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک بلکہ سونا بھی ہمارا عبادت بن سکتا ہے. آپ صبح اٹھے، صبح اٹھنے کے آپ نے دعا پڑھی، پوری رات آپ سوئے، یہ سونا آپ کے لیے عبادت. فجر پڑھے تو عبادت، تلاوت کی عبادت. ناشتہ کھائے، ناشتہ سنت کے مطابق دسترخوان بچھایا، سنت کے مطابق کھائے اور اس نیت سے کھائے کہ طاقت ہوگی تو اپنی بیوی بچے کو کما کے لا کے دوں گا. عبادت نہیں،
अपने बीवी बच्चे की, माँ बाप की जो हम पर जिम्मेदारी है, नाश्ता खाऊंगा तो खेत में काम कर पाऊंगा, दुकान पे काम कर पाऊंगा। इस नियत से आपने नाश्ता खाया तो नाश्ता का एक एक लुकमा आपके लिए इबादत है। काम में गए, हदीस में मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, किसान आदमी गेहूं में और धान जब काटता है, काटता क्यों है? बीवी के हक को अदा करने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, माँ बाप को खिलाने के लिए, भाई बहन को देने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस काटने में कचिए की, कचिया बोलते हैं, कचिया की जो एक आवाज आती है, कच कच कच, अल्लाह के नबी कहते हैं एक एक कच पर इनके नामे आमाल में सवाब लिखा जाता है। खेत भी काम में, वहां से आए, नहाए धोए सुन्नत के मुताबिक, वो भी सवाब, खाना खाए फिर सवाब, बाजार गए बच्चों का सब्जी लाने वो भी सवाब, नमाज पढ़े फिर सवाब, रात का खाए तो भी सवाब। बीवी से रात में बीवी को खिलाते वक्त बीवी के मुंह में लुकमा उठाकर मुंह में डाला तो भी सवाब। अल्लाह के नबी ने जब ये बात फरमाई कि अपनी बीवी को खिलाने में सवाब, तो हुजूर को है, साहबा को हैरत हुई, या रसूलल्लाह, बीवी के मुंह में प्यार से लुकमा डालते हैं, इसमें सवाब क्यों? नबी ने कहा इससे आगे की बात सुना दूं, अपनी बीवी से रात में शौहर हमबिस्तरी करता है, मिलता है, इस मिलने में भी, इस हमबिस्तरी करने में भी सवाब है। ये भी इबादत है। हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह ये इबादत कैसे है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ, अगर यही काम, ये लुकमा और ये जो है बीवी के साथ ताल्लुक, अगर ये काम बीवी के साथ न करके किसी अजनबिया औरत और लड़की के साथ करता तो गुनाह मिलता कि न मिलता? कहा जी गुनाह मिलता। कहा जब गैर महल में करने में गुनाह है तो फिर महल में करने में सवाब क्यों नहीं? अल्लाह जालिम तो नहीं। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, मुस्लिम में रिवायत है कि अल्लाह ने मुसलमानों के दिन और रात को इबादत बना दिया। इसके दोनों हाथ में लड्डू है। तो जब सारी चीजें इबादत है तो आपका यहां ये बैठना इबादत होगा कि नहीं होगा? ना, बस नियत कर लेनी है। नियत कीजिए कि मैं इस नियत से बैठा हूं कि स्टेज से मौलाना साहब ने अब तक जितना कुछ बयान किया या जो बयान हो रहा है, इसको हम अपनी ज़िंदगी के मुताबिक देखेंगे कि जो बातें कही जा रही है, अच्छी बातें वाक़ईतन मेरी ज़िंदगी में है। अगर है तो शुक्र अदा करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर अल्लाह से तौबा करेंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी ये नीयत हुई तो फिर हिलियतुल औलिया की मैं आपको रिवायत सुनाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इस नीयत के साथ कोई मुसलमान मर्द औरत दीन की बात को सुनता है और सुनाता है तो फिर मजलिस ख़त्म होती है तो मजलिस के ख़त्म पर अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, इन अंतुम मग़फ़ूरुन लकुम, जाओ बंदो मैंने तुम में जितने लोग थे सबको माफ़ कर दिया। वक़द बद्दलतुम सय्यातिकुम बिहसनातिन, और हमने तुम्हारी ज़िंदगी के तमाम बुराइयों को नेकियों से बदल दिया। तो आप खुशकिस्मत हैं कि नहीं? दूसरी बात, तादाद कम है, घबराए ना। अच्छा एक मसला आपको समझा दूं। अल्लाह के यहाँ हमारा और आपका नेक अमल गिना जाएगा या तौला जाएगा? स्टेज पर उलमा भी है, क्या किया जाएगा? गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 ये गिनना हुआ, और तराजू पर ये तौलना हुआ। 1 पाव, आधा पाव, आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो। हमारा और आपका आमाल, नेकियां, इबादत, ये तौला जाएगा या गिना जाएगा? 1 नमाज, 2 नमाज, 3 नमाज, या तौला जाएगा? कुरान कहता है व अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया। कुरान कहता है कि हमारे और आपके अमाल को तौला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। गिनने और तौलने में फ़र्क समझ रहे हैं? कभी ऐसा होता है एक चीज़ गिनने के एतबार से तो बहुत हो लेकिन वज़न के एतबार से कम हो, वज़न के एतबार से कम हो, ऐसा बहुत होता है। संठी का बोझा, हम लोग तो देहात में रहते हैं ना, संठी का बोझा, सूखा संठी हो, वो इतना बड़ा बोझा मुश्किल से 10 किलो होता है। तो इस पर एक तरफ इतना बड़ा बोझा रख दीजिए और एक तरफ 20 किलो रख दीजिए,
20 किलो तो देखने में छोटा सा है, अब बोझा इतना बड़ा है। कौन वजनी है? ये 20 किलो वजनी है, ये भारी है ना, हालांकि छोटा है वो, और ये बहुत है, गिनो तो हजारों है। अल्लाह ने कुरान में, अल्लाह के नबी ने हदीस में हमें ये समझाया कि हमारे और आपके अमाल को गिना नहीं जाएगा, तौला जाएगा। मैंने आयत पढ़ दी, और बुखारी की आखिरी हदीस जिसको पढ़ के मौलाना फारिग होता है, उस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बना है, इन्ना आमाल बनी आदम लयुज़न यौमल क़ियामा, वो बाब ही है कि अल्लाह ताला बंदों के अमाल को क़यामत के दिन वज़न करेंगे, तौलेंगे। और उस पर रिवायत जिक्र क्या, कलिमतान हबीबतान इलर्रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाह बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह को 2 कलमे बहुत महबूब हैं, ज़ुबान पे बहुत हल्के हैं, अल्लाह के तराजू में बहुत भारी हैं। पहला कलमा सुबहान अल्लाह, दूसरा कलमा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हल्के फुल्के। तो इस हदीस ने भी बतलाया, यानी अल्लाह के नबी ने भी बतलाया कि हमारे आपके अमाल को गिना नहीं जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा। ये 2 बातें मैंने क्यों कही, मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं ये बात क्यों कहा हूँ, ये आपके मजमा को देखकर। हजारों का मजमा हो, लाखों का मजमा हो, गिनने के एतबार से लाख हो, लेकिन अगर उसमें अमल करने वाले 10 हों, अमल करने वाले 10 हों, और यहाँ बैठने वाले 100 हों, और अमल करने वाले 10 हों, बताइए फीसद किसका ज्यादा है? कामयाब कौन सा मजमा है, वो लाखों वाला या 100 वाला? बोलिए, 100 वाला कामयाब है। इसलिए बुद्धि और अतराफ के मुसलमान भाइयों, अल्लाह की नजर में कसरत मतलूब नहीं है, अल्लाह की नजर में कैफियत मतलूब है। आप सुबह से शाम तक नमाज पढ़ते रहे, समधी को दिखाने के लिए, शागिर्द पढ़ता रहे, उस्ताद को दिखाने के लिए, लोग पढ़ते रहे दूसरे लोग को दिखाने के लिए, अल्लाह की नजर में आपकी इस नमाज की कोई कदर नहीं। हाँ, आप तन्हाई में कोई ना देख रहा हो, सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ें, वो अल्लाह के तराजू में भारी हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि जब भी कोई नेक काम करें तो इस नियत से करें कि अल्लाह राजी हो जाए, चाहे दुनिया वाला राजी हो या ना हो, तो उस नेक आमाल में वजन होगा, और यही वजनी आमाल आपको काम देगा। आमाल बहुत हो और दिखावा हो जाए, ज़कात दें दिखाने के लिए, नमाज पढ़ें दिखाने के लिए, सदका करें दिखाने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा, हवा मंसूरा हो जाएगा, नाम आमाल अल्लाह के दरबार में खाली रहेगा। इसलिए हम नेक आमाल जो भी करेंगे इंशाअल्लाह इखलास के साथ करेंगे ना, करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। बहरहाल ये तो तमहीदी बात आपके मजमा को देखकर मेरे जहन में आई, बस वक्त ज़्यादा नहीं है, दुआ होनी है, उससे पहले चंद गुजारिश करके बात ख़त्म करूँ। ये उन्वान है इस जलसे का, तालीमी बेदारी और इस्लाही मुआशरा। ज़रा तवज्जो देखिएगा, बाद जिसने भी ये उन्वान रखा और जिसने भी तय किया, वाक़ईतन बहुत ही समझदारी का और अक्लमंदी का सबूत दिया है। ये दोनों चीज़ लाजिम मलजूम है, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती। मुआशरा बिगड़ा हो, उसकी इस्लाह का तरीक़ा तालीम के अलावा कोई और नहीं है। तो तालीम बेदारी ये इस्लाह मुआशरा का ज़रिया है। इस्लाह मुआशरा का मतलब है बिगड़े हुए मुआशरे की इस्लाह, यानी बीमार का इलाज। इस्लाह का माना इलाज, आले इल्म अगर हो तो समझते होंगे, इस्लाह का माना इलाज, और मुआशरा का माना समाज। समाज से मुराद ये पेड़, ये घर, ये दरख्त, ये कुआं, ये पिंडाल नहीं, समाज नाम है मेरा और आपका, हमारा और आपका नाम समाज है। तो इस्लाह मुआशरा का मतलब यह है कि हमारे और आपकी इस्लाह, और इसको ठेठ देहाती ज़ुबान में कहिए तो हमारे और आपका इलाज। तब सवाल ये है कि इलाज तो बीमारों का किया जाता है। आज तक देखा आपने किसी हट्टे कट्टे तंदुरुस्त को एम्बुलेंस पर बैठाकर पलासी ले जाते हुए हॉस्पिटल? किसको ले जाया जाता है? बीमारों। तब सवाल ये, आप मुझसे सवाल करें, जलसा की कमेटी से सवाल करें, अरे भाई हमें तो कोई बीमारी है ही नहीं, तुमने ये इलाज का कैंप लगाया क्यों? एक सवाल होना चाहिए ना, सवाल। ये इलाज का कैंप है,
हमारे अंदर तो कोई बीमारी नहीं है, ना नस्ला, ना जुकाम, ना खांसी, ना सर में दर्द, ना पेट में दर्द है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। पूरे गांव वाले बुद्धि वाले ठीक है, इनकी बुद्धि भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो फिर तुम इलाज का कैंप क्यों लगाए हो? सेहतमंद का इलाज कहां होता है? जवाब यह है कि सही बात यह है कि आप बीमार हैं। कहा जी कैसे? कहा जी देखिए, बात असल ये है कि इंसान की हकीकत मजमूई तौर पर दो चीज़ है। नंबर एक जिस्म, बॉडी, नंबर दो रूह, जान, जिसको हम कहते हैं दिल। दोनों चीज़ ज़रूरी है। अगर हमारा सिर्फ रूह मौजूद हो और ये हाथ पैर बॉडी ना हो, कोई हमें पहचानेगा? और फिर बुद्धि में हम जलसा करने आएंगे? किस गाड़ी वाला हमको लेकर आएगा जब हमारा हाथ पैर ही नहीं होगा? तो इसका मतलब ये है कि रूह से फायदा उठाने के लिए जिस्म जरूरी। अच्छा, जिस्म मौजूद है, वही हाथ, वही पैर, वही गाल, वही सर, वही सब कुछ, लेकिन बाप के उस जिस्म से रूह निकल जाए, मर जाए, अल्लाह न करे, तो प्यार करने वाली बीवी, औलाद, गांव समाज अपने बस्ती में 24 घंटे से ज्यादा रखने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि रूह निकल गई है। मतलब दोनों चीज जरूरी है, रूह भी जरूरी है और जिस्म भी जरूरी है। अब आइए, अल्लाह का निज़ाम ये है, ये जिस्म भी बीमार होता है और रूह भी बीमार होती है। अब समझने की कोशिश कीजिए, जिस्म भी बीमार होता है और रूह भी बीमार होते हैं। जिस्म की बीमारी नज़ला, जुकाम, खांसी, सर में दर्द, पेट में दर्द, आप जानते हैं। अल्लाह रहीम व करीम ने हमारे जिस्म की बीमारी को दूर करने के लिए दुनिया में डॉक्टर से बनाए, मेडिकल से तैयार करवाए, हॉस्पिटल तैयार करवाया, MBBS डॉक्टर बनाया, MD डॉक्टर बनाया। हमें जब जिस्म की कोई बीमारी लगती है, अब आप मुझे बताएं, चाहे कितना ही गरीब इंसान हो, अगर उसे दुनिया का सबसे बड़ा मर्ज लाहिक हो जाए, क्या वह बिस्तर पर पड़ा रहेगा या इलाज के लिए जाएगा? अगर जमीन बेचनी पड़े तो बेचेगा, औलाद को दिल्ली कमवाएगा, दुकान बेच देगा, घर बेच देगा, कुछ ना मिले भीख मांग लेगा, लेकिन इलाज जरूर कराएगा। क्यों? उसे मालूम है जब तक हम इलाज नहीं कराएंगे अपने जिस्म और बॉडी से कोई फायदा नहीं उठा सकते। जबकि मेरे भाई, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, ये बॉडी और ये जिस्म, ये हाथ पैर, ये खूबसूरत चेहरा, ये जन्नत से नहीं आया है और ये आखिरत में नहीं जाएगा। ये इसी मिट्टी से बना है और इस मिट्टी के कीड़ा का ये लुकमा बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अल्लाह को इस बॉडी और इस जिस्म की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बचाने की हम कितनी फिक्र करते हैं। इसी तरह दूसरी चीज जो असल चीज है, ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह फरमाते, लोगों मुझे तुम्हारी खूबसूरती नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ताकत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। तुम अपनी दौलत की वजह से मेरे यहाँ कामयाब हो जाओगे नहीं, तुम अपने ओहदे की वजह से नहीं कामयाब हो सकते, तुम अपनी खूबसूरती की वजह से कामयाब नहीं हो सकते, तुम अपनी ताकत की वजह से कामयाब नहीं हो सकते, तुम अपनी मालदारी की वजह से कामयाब नहीं हो सकते। ये तुम्हारी दुनिया तुझे मुबारक, मेरे यहाँ इसकी रत्ती बराबर कदर नहीं। हाँ, मैंने तुमको साफ सुथरा दिल दिया था, रूह दिया था, पाको साफ। ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ये साफ सुथरा दिल और ईमान लेकर आ जाओगे तो तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह को क्या चाहिए? जिस्म चाहिए या रूह चाहिए? रूह साफ सुथरी चाहिए। आइए, ये रूह भी बीमार होती है। क्या है रूह की बीमारी? क्या है रूह का कैंसर? क्या है रूह का फालिज? झूठ बोलना रूह की बीमारी है, गीबत करना रूह की बीमारी है, चुगलखोरी करना रूह की बीमारी है, झगड़ना रूह की बीमारी है, जुल्म करना रूह की बीमारी है, गरीबों को सताना रूह की बीमारी है, दूसरों के ऊपर हाथ छोड़ना। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।